Good morning, students. This is Latika Sharma. I am teaching financial accounting to BCom students, semester 1. Paper code already I have mentioned in this slide. There is 241-209-1103, right? So I want to tell you that as this exam or this paper is being very hyped as a difficult one because it is financial accounting. But I will start this video with a bit of a gyan to all of you, that financial accounting comprises of few topics which you have already studied in your 11th and 12th, but there are few new topics also. So it is better to attend your classes plus practice as much as you can, and this subject will be your favorite once you're quite thorough with your practice in this subject. Right. So let's just start with what is a bifurcation? Internal, how much marks are we allotting for internal? How much is for practical? As there is a practical exam or practical exam also there. See, you can see very well there are 4 credit allotted to this subject. So basically, internal assessment, if you talk about internal assessment for financial accounting is of 30 marks as of for every subject it is there, right? How 30 marks are being bifurcated? What is the division of those 30 marks? See, as I told you, as much as classes you're going to attend, you more proficient you will be because more topics are covered in the classes than the practice at home. So 6 marks are allotted in internal assessment for attendance, right? Then 12 marks for assignment that you have to submit. Then 12 marks for your test, which will be held in one of the class. So this is all for the IE as an internal assessment, 30 marks. Now, what about the other 40 marks? क्योंकि इसमें there is जो continuous assessment है, वो practical में ही आप include करेंगे, जैसे कि 40 marks in total आपको allot किए गए हैं. Sorry. Which is 10 marks is continuous assessment. 10 marks यहाँ पर continuous assessment पे हैं, right? Plus 20 marks is for the practical paper which will be held. Paper होगा या आपका practical मतलब lab में practical होगा, whatever it is, 20 marks are allotted for that. Now plus 10 marks is for the viva which your teacher will take. तो 10 मार्क्स आपके वाइवा के हैं, 10 मार्क्स आपके कॉन्टिनेंस असेसमेंट के हैं और 20 मार्क्स आपके उस प्रैक्टिकल के हैं जो कि कंडक्ट होगा. सो इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल आपके इन टोटल बन जाते हैं 70. ठीक है, 70 मार्क्स आर देयर प्लस 90 मार्क्स जो कि आपका एंड टर्म थ्योरी एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा. तो 70 plus 90 160. This is how the bifurcation of financial accounting is being done here, right? So let's move to आपकी जो यूनिट्स आ रही हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 आपके अकाउंट्स कितनी कौन सी यूनिट वेटेज किसकी है. Now if we talk about first unit which is totally theory, जहाँ पर हम अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स की, अकाउंट के प्रिंसिपल्स की, अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं जो कि इंडियन एंड जनरली एक्सेप्ट गैप जिसको बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अमेरिकन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सब इसमें आता है यूनिट 1 में. ठीक है, एंड इट इज ऑफ उसकी क्या वेटेज है 15 मार्क्स उसके लिए अलॉटेड है. थ्योरी 15 मार्क्स कैरी करता है. देयर इज द सेकंड यूनिट which comprises of business income, accounting for property, plants and equipment and valuation of inventory. Inventory is again a new topic. अब plant and equipment की जब हम बात करें तो हम depreciation की बात करें which is 11th 12th topic.
एंड यहाँ पर बिजनेस इनकम जो है वो हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट्स की, तो ये जो यूनिट 2 इज अ बिट ऑफ मिक्स ब्लेंड ऑफ न्यू टॉपिक प्लस पुराना टॉपिक जो जिससे हम थोड़े फेमिलियर है। तो वो 20 मार्क्स है विच इज गुड फॉर यू। आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे अगर आप कुछ न्यू टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस होंगे उनसे वेल वर्स्ड होके पुराने टॉपिक्स के साथ में 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। Plus, this is Unit 3, which we are talking about financial statements of sole proprietorship and not-for-profit organization. Now, see, financial statements accounting का बहुत बड़ा पार्ट है और हम लोग 11th-12th में कर चुके हैं। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पुराने भी हैं। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने 11th-12th में नहीं किया है, सो दैट इज द ओनली न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस यूनिट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज समथिंग विच यू फेमिलियर विद, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नई चीज आ गई है उसमें। अगेन इट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 4 इज टोटली कंप्लीट न्यू टॉपिक्स विच आर देयर। यहाँ पर हम ब्रांच ऑफिसेज या इनलैंड ब्रांचेस जो हम डिफरेंट ऑफिसेज खोलते हैं उनकी बात हो रही है। डिपार्टमेंट स्टोर्स जो हम डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनकी अलग बजटिंग जो बनती हैं। जो लीज प्रॉपर्टीज होती है उनके अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम इस यूनिट में बात करें। एंड इस यूनिट की आप अगर देखोगे ओवरऑल तो सबसे ज्यादा वेटेज है 25 मार्क्स की है। बाकी यूनिट 2 20 मार्क्स है, यूनिट 3 20 मार्क्स है, थ्योरी 15 मार्क्स की है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आप देखो तो यूनिट 4 की है 25 marks because this is thoroughly a new topics. These are all new topics for 12th पास स्टूडेंट। सो यहाँ पर थोड़ा बस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। देन 5th इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा जो आप कर रहे हो और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सब जो आप पेपर वर्क कर रहे हो वो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कैसे हैंडल करते हैं एंड हाउ दो सॉफ्टवेयर वर्क। आपको उस सॉफ्टवेयर से फेमिलराइज करवाया जाता है एंड हाउ मच यू फेमिलराइज विद दो सॉफ्टवेयर वो ही प्रैक्टिकल है आपका। तो 20 मार्क्स उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के हैं। यही बाइफिकेशन है अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की। यूनिट वाइज बाइफिकेशन में आपको बता दिया है, प्लस इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और जो कॉन्टिनेंट असेसमेंट है उसकी भी बात मैं कर चुकी हूँ। सो आई विल एंड माय वीडियो हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।